Hello students. Now in this lesson ABM4 I am going to explain you principle of list cost. Principle of list cost क्या है? Minimum cost हमें different combinations of resources में निकालना है. Let us see this I am discussing in context of agribusiness management. Law of substitution या principle of least cost combination क्या है? इसमें दो चीजें हैं. एक है कि हमें इंक्रीज करना है आउटपुट और दूसरा है मिनिमाइज द कॉस्ट. हमें एग्जाम्पल से ठीक से समझ में आएगा. तो इन दो ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से मैथमेटिकल वे में बता सकते हैं. मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट सेम हो और उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, तो किस कॉम्बिनेशन पे मिनिमम कॉस्ट हमें लगेगा. Optimization of output to the fixed factors through alternative resources. Use combinations. Y is function of x1, x2, x3, x4 ... xn. तो जो factors हैं, suppose different resources हैं और उनके combination पे हमें एक output मिल रहा है y. तो y is the output and these are the resources. अगर हम दो फैक्टर पर सिर्फ सोचें x1 और x2, ठीक है, दो रिसोर्स हैं, उन दोनों का कॉस्ट है px1 और px2. अब हम इसको इस तरह से a given level of output can be produced using many different combinations of two variable inputs. Two variable inputs can have different combinations for getting one output, isn't it? In choosing between the two completing resources, the saving in the resource replaced must be greater than the cost of resource added. If you are replacing the existing resource, then what should happen? The amount what you are spending with the earlier resource should be greater than the new resource what you are adding. In that, whatever cost is incurring, it should be less than the previous one, isn't it? जो आपने रिसोर्स को, नया रिसोर्स को यूटिलाइज किया, तो पहले रिसोर्स में जो खर्च होता था उससे कम लगना चाहिए, तभी तो वो साइंटिफिक है या जस्टिफाइड है. The principle of least cost combination states that if two factor inputs are considered for a given output, the least cost combination will be such where their inverse price ratio is equal to their marginal rate of substitution. यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है inverse price ratio, दूसरा है marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution, इसको हम यहाँ पर define करते हैं. MRS is defined as the units of one input factor that can be substituted for a single unit of the other input factor. So MRS of x2 for one unit of x1 is number of unit of replaced resource x2 divided by number of unit of added resource x1. इसका क्या मतलब हुआ? जो आप ग्राफ देखोगे ना आइसोक्वांट लाइन का, it is convex at the origin. origin के तरफ ये कॉन्वेक्स होता है, वो बिल्कुल कर्व होता है. तो जैसे जैसे आप इसका नीचे की ओर आओगे, ऊपर से नीचे की ओर, तो क्या है, क्वांटिटी जो y एक्सिस में दिखा रहा है वो घट रहा है और x एक्सिस में जो है वो बढ़ रहा है. और बट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑन दिस कर्व, इट इज गिविंग द सेम आउटपुट. सेम आउटपुट आपको उस कर्व में मिलता है. तो जहाँ पे आइसोकॉस्ट और आइसोक्वांट लाइन दोनों टच करता है, वहाँ पे क्या होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आपने नंबर ऑफ यूनिट रिप्लेस्ड जो पुराना था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट एडेड, इसका जो रेशियो है, उस मतलब वो जो स्लोप का जो कर्व होगा, दैट इज इक्वल टू द इनवर्स प्राइस रेशियो. कॉस्ट पर यूनिट एडेड रिसोर्स, नए वाले का प्राइस डिवाइडेड बाय पुराने वाले का प्राइस, ये दोनों सेम होता है. यही दो चीज यहाँ पे दिखाया है, दो कंसेप्ट. Therefore, the least cost combination of two inputs can be obtained by equating MRS with inverse price ratio. So that's why this formula is given x2 into px2 is equal to x1 into pxo. है ना? तो आपको आउटपुट सेम मिल रहा है लेकिन कॉस्ट कम हो रहा है, तो हम
क्यों नहीं नीचे की ओर आ जाए, जहाँ पे टच कर रहा है आइसो कॉस्ट लाइन, आप अभी ग्राफ में देखोगे। तो आइसो क्वांट लाइन इज व्हाट? आइसो मीन्स इक्वल एंड क्वांट मीन्स क्वांटिटी। इस पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिसोर्सेज बट गिविंग सेम आउटपुट, वो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ। और इसका और क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस ऑफ वन इनपुट फॉर अनदर, द एडिशनल units of an input will replace less and less unit of another input। तो इसमें क्या कहता है ना कि डिमिनिशिंग, धीरे धीरे उसका रिक्वायरमेंट कम होता जाता है, और जो एडिशनल हम यूनिट डालते हैं वो पुराना जो है उसका लेस एंड लेस यूनिट ऑफ अनदर, उसका कम से कम यूनिट हटाते हैं। तो आप ग्राफ में इसको समझ पाओगे। आइसोक्वांट डज नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। और स्लोप ऑफ आइसोक्वांट रिप्रेजेंट द एमआरएस, उसका स्लोप जो है जैसा अभी हमने बताया आपको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आइसोकॉस्ट लाइन, आइसोकॉस्ट लाइन आपको हमने भी बताया ये भी कि इस स्ट्रेट लाइन, और अगर एक्स और वाई में देखोगे तो इसमें क्या है कि इस लाइन पे कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों रिसोर्सेज का आप लोगे तो उसका कॉस्ट सेम होगा। डिफरेंट आउटपुट मिलेगा इस लाइन पे लेकिन कॉस्ट सेम होगा। तो किसी भी पॉइंट पे आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो कि जो एक एक्स एक्सिस पे मान लो x1 है, वाई एक्सिस पे x2 है, तो x1 और x2 का दोनों का प्राइस भी अलग है, दोनों का कॉस्ट आप देख लो, तो दैट इज टोटल कॉस्ट px1 इंटू x1 प्लस px2 इंटू x2। तो इस लाइन पे सारा वो सेम होगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? एज total outlay increases, the iso cost line moves higher and higher away from the origin and vice versa। मतलब जब सेंटर से आप ऊपर की ओर जाओगे तो जो स्ट्रेट लाइन है आइसो कॉस्ट लाइन का वो बढ़ता जाएगा और उसका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। The iso cost lines are straight, slope of iso cost line represent price ratio, उसका slope price ratio है px1 by divided px2, जो नया आपने ऐड किया और जो रिप्लेस किया px2 when x1 is taken on x axis and x2 on y axis। List cost combination point, one iso cost and iso quant curves are depicted. It is now easy to locate the point of least cost combination. The slope of isoquant and isocost line represent the MRS and price ratio respectively। अभी हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। The criteria for obtaining least and combination is MRS is equal to PR, and hence graphically it can be obtained where slope of isoquant is equal to slope of isocost line। Now let us see in the, ये देखो डिफरेंट आपके कॉम्बिनेशंस हैं और यहाँ पे हमने सारे लाइन दिखाया। ये है आइसो क्वांट, इसका क्वांटिटी 10 है। इस कर्व पे जो भी कॉम्बिनेशन है ये एक्स एक्सिस में L और वाई एक्सिस में K, इन सब का आउटपुट क्वांटिटी 10 होगा। इस कर्व में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ L और K के हैं, मतलब रिसोर्सेज के हैं, लेकिन आउटपुट क्या है? Q इज इक्वल टू 10। और ये क्या है? आइसो कॉस्ट लाइन है। इसका क्या है? कॉस्ट 48 रुपीज, C इज इक्वल टू 48। इसमें जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ L और K के हैं, आउटपुट तो डिफरेंट होगा लेकिन उसका कॉस्ट सेम होगा इस लाइन पे। देखो ये भी एक डिफरेंट आइसो कॉस्ट लाइन है ये। और ये कर्व यहाँ पे क्या है? आइसो क्वांट है, ये quantity 8, and this is third one, this is isoquant giving 6 output, and the iso cost is this one rupees 24, है ना? तो आप देखो कोई भी एक ले लो, मान ले this one, in this curve the quantity output is 8 and it is touching iso cost line at this point D। What is that this point? In this, slope of this curve is equal to the slope of this straight line isocost, है ना? आइसोकॉस्ट को ये जस्ट टच करते हैं पर टेंजेंशियल है, इसके बाद ये आगे चला जाता है। यानी इस पॉइंट के पहले भी इसका कॉस्ट ज्यादा है, इस पॉइंट के बाद भी कॉस्ट ज्यादा है। इस
पॉइंट पे कॉस्ट मिनिमम है एंड दैट इज रुपीज 20, नो दिस इज रुपीज 36. तो एट दिस पॉइंट ऑफ डी दोनों पी आर और एम आर एस इक्वल. It looks for that factor combination that is on the lowest of the iso cost lines, where the iso quant touches but does not cross the lowest iso cost line is the least cost position. जहाँ पे वो टच करता है just, it is giving you the lowest iso cost or least cost point. Thank you very much. You have given very quality time. आपने इसे समझा, थोड़ा मैथमेटिकल था, थोड़ा इकोनॉमिक्स था. आपके ये कंसेप्ट हमेशा यूज आएगा, हमेशा इन टर्म्स से आपको पाला पड़ेगा. तो आपको इसको अच्छे से समझना है. इट इज नॉट दैट इट्स अ हेडेक, इट इज अ गुड थिंग. ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो आगे मैनेजमेंट पढ़ने में आपको आसानी होगी. थैंक यू अगेन. आई विल कम विद अनदर टॉपिक.